Hello students, welcome. So today our new topic is taxonomical aids. As we know that in planet Earth there is a huge diversity is present of living organism. There are variety of living organisms present which is going to have a variation in the morphology, variation in size, color, anatomy, habit and habitat. So there are about 1.7 to 1.8 million living organisms are present in the earth. So, as we know that there is so much diversity, vast diversity is present. So, to understand the interrelation between the living and the non-living, the systematic study it is essential. So, जो भी systematic study से हमको data मिलता है, it is very important so that we can use it for the industries and it is also important for the agriculture. When we talk about the laboratory and the field study, here these are thing is essential to be done so that we can able to identify the organism, and after identifying the organism the classification of organism it is done. So इस तरीके से जो strong data collect किया जा सकता है. And to also study the diversity, we also require certain aids that are called as taxonomical aids, like the herbaria, botanical garden, museum, biodiversity parks. They also help us to study the diversity. So first we'll talk about the herbarium. This word herbarium was coined by the Piton de Tournefort in the book Elements. Here, ये जो art है herbarium का, it was initiated by Italian taxonomist जिनका नाम है ल्यूका घिनी, जिन्होंने ये herbarium का जो art है वो start किया था. And it is a very effective tool for the classification study, for the taxonomical studies. So herbarium में करते क्या है? In the herbarium, we use a plant specimen and we mount on the herbarium sheet. So इस तरीके से dried plants के specimen जो हैं आपको herbarium sheet में नजर आएंगे, which is pressed and it is treated and it is mounted on the standard size sheet of the herbarium sheet. और इस तरीके से हम variety types के plants को जो है हम लंबे समय तक preserve कर सकते हैं. खास बात यह है कि इसको लिखने का भी एक तरीका है. That is, whenever we observe any kind of herbarium sheet, we require some information. जैसे कि कब ये प्लांट को कलेक्ट किया गया था, कौन से प्लेस से कलेक्ट किया गया है, वो प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या है, वो एंजियोस्पर्म है, मोनोकॉट है, डाइकॉट है, क्लासिफिकेशन इट इज रिक्वायर्ड, और उसके जो इंपॉर्टेंट पेक्यूलर कैरेक्टर्स हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और उसके साथ साथ हेयर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट इज असेंशियल. जिसने कलेक्ट किया है वो कलेक्टर का नाम भी चाहिए, और कौन से उसका लोकल नेम क्या है वो प्लांट का वो भी इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज एडेड इनटू द लेबल. सो ये सारी चीजें जो है वो लेबल में आ जाती हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सी इन द herbarium file this plant it is mounted on this sheet, and in the right side of the corner all the labeling it is been provided. सो इस तरीके से जो है हर्बेरियम को लिखा जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉटनिकल गार्डन्स. बॉटनिकल गार्डन्स दीज आर द प्लेसेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स दे आर बीन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनको जो है ग्रो किया जाता है, और उसके साथ साथ हेयर साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से जो है इनको रखा जाता है. So whenever we see any kind of a plant in the botanical garden, they are properly labeled on a kind of a plate. और scientific name तो लिखा ही जाता है, उसके साथ साथ उसका common name भी लिखा जाता है. सो इन 1543 सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन जो है वर्ल्ड में बना गया था, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय अगेन इटालियन प्रोफेसर ल्यूका गिनी एट पीसा इटली. और ये जो बॉटनिकल गार्डन है एट क्यू इन इंग्लैंड इज नोन फॉर द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स. यहाँ पर करीबन आपको 30,000 स्पेसिमेंस नजर आएंगे प्लांट्स के. And here at this place there are about 7 million herbaria. They are also kept preserved condition. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉक्सोनॉमिकल एड्स की, दैट इज अ म्यूजियम. म्यूजियम एक ऐसी प्लेस है जहां पर कलेक्शन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स का इन द स्पेसिमेन फॉर्म, एंड दिस इज हाउ दे आर बीन केप्ट. So here this is how these are the things which are easily observed in a particular museum. Here this is the plant museum. Here जब भी हम प्लांट्स को या तो फिर एनिमल्स को देखते हैं दे आर बीन प्रिजर्व्ड इन अ लिक्विड, और ये जो लिक्विड है दैट इज अ फॉर्मेलिन, जहाँ पर 10% टू 40% फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल डाला हुआ है. सो इट इज दिस इज हाउ इट इज केप्ट इन अ प्रिजर्व्ड ट्रांसपेरेंट जार.
सो लार्जर एनिमल्स की बात करें तो लार्जर एनिमल्स को हम इन जार में तो रख नहीं सकते, इसीलिए उनके बॉडी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनको निकाल दिया जाता है, एंड दीज एनिमल्स दे आर बीन स्टफ्ड बाय सम ऑफ द अदर मेडिसिनल प्लांट विच विल हेल्प देम फॉर द लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन। सो ये जो साइंस है दिस इज कॉल्ड एज टेक्सीडर्मी। सो स्पेसिमेंस जो है उनको ड्राइड फॉर्म में रखा जाता है लंबे समय के लिए इन द म्यूजियम, and in the museum you will also see there is a huge collection of the shells, huge collection of the skeleton, it is also kept, and even insect boxes are also found in the museum. So इस तरीके से biological museum जो है it is important in the educational institutes and our reference hub for the biodiversity studies. अब बात करते हैं zoological parks की. Zoological parks, zoo, this is the place where the animals are being kept and it is a good place for the interest of the common man. So इस तरीके से zoo में जो है wild animals को रखा जाता है, captivity में रखा जाता है और उनका बहुत ही अच्छे से care भी किया जाता है. So they are protected and the care it is taken by the zoologist. So इनको जो है इनके natural habitat से निकाल कर एक artificial habitat create किया जाता है, this is how they are kept. So इस तरीके से जो भी अगर endangered species हैं तो उनका जो number है हम increase कर सकते हैं by taking care of them. So इस तरीके से natural habitat से निकाल कर artificial habitat में रखना, okay, और उनका care करना, this kind of conservation is called as ex situ conservation. So zoos में जो है ex situ conservation होते हुए नजर आएगा. सो जो भी नेचुरलिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स का फूड हैबिटाट है, किस तरीके का बिहेवियर है एनिमल्स का, वो आसानी से स्टडी कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड द कैटलॉग. जो फ्लोरा होता है एक्चुअली इट इज द स्टडी ऑफ द प्लांट्स. सो फ्लोरा में आपको जो है आपको मिल जाएगा कि हियर इट इज अ काइंड ऑफ अ बुक which is containing the information as to the habitat, climate, seasonal changes, distribution, description and index of the plant found in a specific area. तो पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट्स मिलते हैं, कैसा उनका हैबिटाट है, क्लाइमेट किस क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, कैसे सीजनल चेंजेस में रिएक्ट करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दिस इज व्हाट वी स्टडी. दूसरा आता है नेक्स्ट इज द मैनुअल. मैनुअल एक तरीके के हैंडी बुक है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं अबाउट पर्टिकुलर एरिया में कि कौन कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, उनका करेंस क्या है, कलेक्शन क्या है और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है. Next comes a monograph. Monograph, it is a treatise having all information about particular taxon like family or genus. तो यहाँ पर monograph जो है एकदम limited information देता है, या तो वो taxon के बारे में बताता है या तो फिर limited information जैसे कि family के बारे में बताएगा. So this is how a particular information it is providing of a particular family or a taxon. नेक्स्ट आता है दैट इज द कैटलॉग. कैटलॉग में जो है आपको नजर आएगा काइंड ऑफ अ लिस्ट or register that enumerates methodical all the species found in a particular place, often with brief description aiding the identification. तो identification तो बताएगा ही, and here you will find that there is list of the species जो कि एक particular place में पाई जाती है और उसके साथ साथ उसका description भी दिया होगा. So इस तरीके से the flora, the plant life occur in a particular area on time. Monograph it describe any one selected biological group. Manual it provide information keys about identification of species found in area. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड की, दैट इज अ बायोडाइवर्सिटी पार्क. सो अगर कोई एक एरिया है द बैरन एरिया और हियर यू कैन सी द डिग्रेडेड एरिया, अगर इसी एरिया को जो है कोई नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई कर लें, मतलब कि धीरे धीरे कम्युनिटी बन जाए, कम्युनिटी मतलब बहुत सारी स्पीसीज एक साथ आ जाएं, जैसे प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल्स की स्पीसीज है, बैक्टीरिया माइक्रोब की स्पीसीज हैं. सो इस तरीके से ये कम्युनिटी अगर बन रही है, सो हियर दिस इज हाउ द बायोडाइवर्सिटी पार्क इट इज फॉर्म. सो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है दैट इज द लेट उमंतराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क एट गोरेघर, महाबलेश्वर. सो ये एक ऐसा पार्क है विच इज गिविंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज इन अ अर्बन लैंडस्केप. अब हम बात करेंगे कीज के बारे में. कीज जो है ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड ही है विच हेल्प अस टू क्लासिफाई द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. अगर सपोज आपको कोई ऑर्गेनिज्म नजर आता है, ओके, और उसमें अगर आपको कुछ कैरेक्टर नजर आता है दैट इट हैज लेग्स, ओके, सपोज यहाँ पर एक कैरेक्टर हम देख लेते हैं, सपोज इनके पास लेग्स हैं या नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, अगर उसके पास लेग्स हैं तो हम फर्दर इस
पाथवे को फॉलो करेंगे, और अगर उनके पास लेग्स नहीं है तो हम इस पाथवे को फॉलो करेंगे। सो मान लेते हैं उनके पास लेग्स प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर ये है, क्या उनके पास विंग्स हैं? अगर उनके पास विंग्स हैं तो हम इस पाथवे को फॉलो करेंगे। अगर विंग्स हैं और वो दिन में निकलते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी द बटरफ्लाई, दैट इज गोइंग टू बी द बटरफ्लाई। और अगर वो रात को निकलते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी द मॉथ, क्योंकि मॉथ ही है जो कि नॉक्टर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं। अगर सपोज उनके पास विंग्स नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा क्या उनके पास 8 लेग्स हैं। अगर 8 लेग्स हैं तो वो कहलाया जाएगा एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज सेंटीपीडी, और ऐसा नहीं है तो किसी और ऑर्गेनिज्म के जैसा नजर आ रहा होगा, लाइक द स्पाइडर। या तो फिर हम इस कैरेक्टर को देखते हैं, अगर सपोज जो भी ऑर्गेनिज्म मिला है उनके पास लेग्स नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा उसके पास दूसरा कैरेक्टर है क्या, शेल। अगर शेल है तो वो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म होगा, दैट इज द स्नेल। अगर शेल नहीं है तो वो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म के जैसा नजर आएगा, लाइक द वर्म। तो इस तरीके से जो है कुछ कैरेक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, और ये जो कैरेक्टर्स जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होगा। एक सेंटेंस होगा या तो यस के फॉर्म में या तो फिर नो के फॉर्म में, और इस तरीके से जो है हमें इस पाथवे को क्या करना है, फॉलो करना है। सो कीज दे आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, या तो यस लिखा होगा या नो लिखा होगा। और ये जो कैरेक्टर्स हैं उसमें से एक कैरेक्टर को जरूर रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो देखने के लिए कि वो कैरेक्टर है या नहीं। तो हर एक स्टेटमेंट को जो है हम लीड करके बुलाते हैं। And normally keys are analytical in nature. It is realistic. So इस तरीके से जो है here these taxonomical aid were present, and here the video ends, and thank you very much.